ಉಪಪ್ರಾಚಾರ್ಯರೇ, ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸ್ ಅವರೇ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸಬೋಲೋಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಜನರಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ತ್ರಿದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂರು ದೇವರು ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು. ಇದರಲ್ಲೇ ವಿಷ್ಣು ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತಾಳಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತಾಳಿದ್ರು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅವತಾರ. ಎಲ್ಲ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಕನಸಿನ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಯೋಧ್ಯ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಇದರ ಪ್ರಚಾರ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ದೇವರ ಪ್ರಚಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇನು ಕಾಮನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋದು. ಆದರೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಜಗತ್ತಿಗೇನೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮಹಾನ್ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಜಗತ್ತಿಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಮಂದಿರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ದೇವಾಲಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಇದು ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಒಂದೇನು ಪವಾಡನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲೇ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಆರಾಧನೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರು ಸಹಿತ ಈ ಧರ್ಮ ಇದ್ರೆ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಪವಾಡನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ, ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಂತ ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ದೇವಪುರುಷ 70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಈ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವಮಾನವ, ದೇವದೂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಹಂತವನ್ನ, ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ತುಮಕೂರು ಸಹಿತ ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ? ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದು? ಎನಿಬಡಿ ಒನ್? ಇಸ್ಕಾನ್. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ.
ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಂಕಣಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾರು ಕರೆದಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವರಾಗೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರದ್ದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ನವೋದಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಪೂನಾ ರೀಸನ್ ನವೋದಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲುಮಿನಿ, ನಮ್ಮ ನವೋದಯ ಬಳಗದ ಅಲುಮಿನಿ. ಇವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನ ಅವರು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ತೀನಿ ಮಗಳೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಶುಕ್ಲಾ ದೇಶಮುಖ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ನವೋದಯ 1993 admission batch in Jawahar Navodaya Vidyalaya, Uswa in Jalgaon district of Maharashtra. First rank in 10th standard, complete Amritsar. First rank in 10th standard 1998 in JME Uswa in Jalgaon district of Maharashtra. First rank. Okay. Second rank in 12th standard science stream 2000 in Nasik division board, Maharashtra. BTech in mechanical engineering from VJTI College, Mumbai in the year 2004. For the last 10 years, full-time devoted in ISKCON, International Society of Krishna Consciousness, for spreading the spiritual knowledge and guiding the students of schools and colleges in life values and skills all over the country. Okay? Till now, 48 JMEs listed in the last 1 year. 48 JMEs listed. Today, our visit. Okay? So, also 1,000 plus schools and colleges visits for the life values and skills program in the last 10 years. Okay? ಇದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಂಥ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮಗೆ ಅತಿಥಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ JNU ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಹ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋದು. ಲಾಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವರು ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಕ್ಷೆ ಬಂದಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಈಗ जगन्नाथ दास ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. श्री जगन्नाथ दास जी को मैं मंच पर आह्वान करता हूँ. हमारे विद्यालय के छात्रों से उद्देश्य को बात करें. Thank you, sir, for giving me this opportunity to serve in some small way. Wish you all a good morning. I speak in Hindi because it's our देश भाषा. मैं हिंदी में बोलता हूँ. सब लोग ऐसे झुक गए हैं, बहुत काम किया, ऐसा कुछ नहीं है. थोड़ा सीधा बैठिए. यस, इन द मॉर्निंग टाइम वी मस्ट बी अलर्ट. हम सावधान होना चाहिए. सावधान होंगे तो फिर बुद्धि चलती है, नहीं तो बुद्धि सो जाती है. हम जब 30 साल पहले नवोदय विद्यालय जलगांव एडमिशन लिए थे 6ठी कक्षा में, थोड़ा विशेष आनंद था, उत्साह था, उमंग था. कुछ अच्छा बनना है, कुछ अच्छा पाना है. वहाँ पर जब स्कूल गेट पे देखा, लिखा था कम टू लर्न, गो टू सर्व. दीज सिंपल वर्ड्स, छोटे छोटे शब्द जो है हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन दिए.
मोटिवेशन। पीछे आवाज़ आती है अच्छे से? कैन यू लिसन प्रॉपरली? लास्ट पॉइंट, हाँ, कम टू लर्न। बहुत जगह हमें स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे पूछते हैं, सर एक अच्छा मोटिवेशन दीजिए हमको पढ़ने के लिए, अच्छा बनने के लिए, कुछ अच्छा पाने के लिए। हमें एग्ज़ाम्स की टेंशन आती है, कभी चिंता आती है, कभी भय होता है, नतीजा ना रिज़ल्ट का भय होता है कभी। तो हम बच्चों को बोलते हैं, यदि आप समझ जाओगे कि हम स्कूल में आए हैं, विद्यालय में आए हैं अच्छा सीखने के लिए, अच्छा कुछ समझने के लिए, अच्छा कुछ ज्ञान लेने के लिए, तो आपका मन लगेगा वहाँ पर, आपको चिंता नहीं होगी। चिंता कब आती है? चिंता तब आती है जब हमें अपेक्षाएं होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है। मुझे इतना मार्क्स मिलना चाहिए, मुझे पोजीशन मिलना चाहिए। जब ऐसी अपेक्षा होती है तो चिंता आती है। क्यों? रिजल्ट हमेशा अनिश्चित होता है। रिजल्ट हमेशा अनिश्चित होता है, अनसर्टन कि क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कोई जानता नहीं है। जैसे कोई भी मैच होती है, गेम्स में, स्पोर्ट्स में कोई भी मैच होती है, तो अंतिम समय तक कौन सा टीम जीतेगा बोल नहीं सकते, ऐसा होता है। इसलिए वहाँ पे चिंता आती है। यदि अपेक्षा होगी तो नहीं, हमें ही जीतना है, हमें ही जीतना है। हम नहीं जानते कौन जीतेगा। वैसे ही कॉन्टेस्ट में, एग्जामिनेशन में फर्स्ट पोजीशन एक ही को मिलती है, सबको नहीं मिलती है। लेकिन अब किसको मिलेगी ये अनिश्चित होता है। जब मैं 10th में था तो सबको लगा था कि जो व्यक्ति हमेशा, मतलब मोस्टली जो फर्स्ट आता था 10th में या 6th 7th 8th 9th तक, मोस्टली 90% जो फर्स्ट पोजीशन लाता था मेरे बैच में, वो फर्स्ट आएगा, ऐसा सबको लगा था। लेकिन जब रिजल्ट आया, he got second position, I got first position. So that is the uncertainty of life. हम बोल नहीं सकते कि रिजल्ट क्या आएगा। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, मुद्दा है कि हमें ज्ञान के लिए पढ़ना है। किसके लिए पढ़ना है? ज्ञान के लिए पढ़ना है। कम टू लर्न। द लर्निंग प्रोसेस विल गिव यू लॉट ऑफ जॉय। आपको आनंद आएगा, सुख मिलेगा। किसमें? सीखने में, सीखने की प्रक्रिया में, लर्निंग प्रोसेस। अपना क्या होता है, हम सीखने पर ध्यान नहीं देते हैं। हम मुझे क्या मिलेगा इस पे ध्यान देते हैं। और इसलिए हमें जो प्रयास करना चाहिए वो नहीं हो पाता। भगवत गीता भी जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है, हमें अपना ड्यूटी, अपना कर्तव्य, अपना कार्य कैसे करना चाहिए ये सिखाते हैं। तो हम एक श्लोक जो है वो बोलेंगे, आप लोग पीछे बोल सकते हैं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है गीता का, 2 अध्याय और श्लोक संख्या है 47, 2.47। मैं पहले बोलता हूँ, सुनिए, आप पीछे बोलिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, बोलिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भुः, मा कर्मफल हेतुर्भुः, मा ते संगस्तु अकर्मणि, मा ते संगस्तु अकर्मणि।
तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हमें अपना कर्म कैसा करना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं हमें अपनी ड्यूटी करने का पूरा अधिकार है। वी हैव द राइट टू डू अवर ड्यूटी बेस्ट पॉसिबल वे। नोबडी विल स्टॉप यू। यदि आप पढ़ना चाहोगे, यदि आप एक सप्ताह में इन 1 वीक यू वांट टू स्टडी द होल साइंस बुक, द होल मैथमेटिक्स बुक, नोबडी विल से नो टू यू। कोई ऐसा बोलेगा नहीं, ऐसे किताब खोलना पाप है। जब तक टीचर बताएगा नहीं, टीचर जब तक सिखाएगा नहीं, किताब खोलना पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा कोई बताएगा नहीं। जिसको सीखने की इच्छा है उसके लिए पूरा अधिकार है। नोबडी विल स्टॉप यू। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मैडम मैंने 10 घंटे रोज पढ़ाई की है, मुझे कम से कम 90% मार्क्स आना ही चाहिए। आई मस्ट गेट, यू मस्ट गिव मी 90 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। अब ऐसे मैडम को बोल नहीं सकते। You cannot demand, you cannot claim, you don't have right to say that मैं इतना मेहनत किया हूँ, मैं इतना पढ़ाई किया हूँ, मुझे इतना मार्क्स, इतना ये पोजीशन मिलना ही चाहिए, ऐसे हम बोल नहीं सकते। तो भगवान वही बोल रहे हैं, कर्मणि इन डूइंग अवर ड्यूटी कर्मणि एव निश्चित, सडनली कर्मणि एव अधिकार, आपका अधिकार है, आपका राइट है। कर्मणि एव अधिकारस्ते, आपका। माँ फलेषु कदाचन, माँ मतलब नॉट, फलेषु मतलब रिजल्ट, फ्रूट्स, कदाचन मतलब नेवर। आपका कभी अधिकार नहीं होगा कि मुझे ये मिलना ही चाहिए रिजल्ट। और जब रिजल्ट मिलता भी है तो ये नहीं समझना है कि केवल मेरी वजह से मुझे रिजल्ट मिला है। माँ कर्मफल हेतु भूर, केवल खुद को अकेले को ये मत समझो कि मैं अकेला कारण हूँ जो मुझे मिला है उसके लिए, नहीं। भगवान गीता में कहते हैं 5 मुख्य कारण होते हैं। हमें जो भी कुछ मिलता है जीवन में, फल मिलता है, रिजल्ट, परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है, 5 कारण होते हैं। पहला अपना बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन मशीन। ये अपना नहीं है, ये हमें दिया गया है। दिस बॉडी इज गिवन टू यू फॉर सम टाइम। दिस बॉडी इज नॉट योर बॉडी, यू मे से माई बॉडी ओनली फॉर सम टाइम। अपने पास है, अपना नहीं है, किसी ने दिया हुआ है। इसलिए यदि बॉडी नहीं होता हमें, मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर, तो फिर हमसे ना मेहनत हो पाती, ना दिमाग हम लगा पाते, ना कुछ हाथों से काम कर पाते। हम सोचते हैं भगवान कहाँ है, भगवान किसने देखा है, मैं तो अपने दिमाग से काम किया, अपने हाथों से काम किया, मैं इतना अपने शरीर से मेहनत किया, भगवान का क्या रोल है। हम ये भूल जाते हैं कि जिस मुंह से बोलते हैं वो मुंह किसने दिया, जिस शरीर से हम इतना अभिमान दिखाते हैं वो शरीर किसने दिया, हमें भूल जाते हैं। बोलते हैं भगवान कहाँ है, जैसे कि ये बॉडी जो है हमने खुद बनाई थी, खूब डिज़ाइन किया था। नहीं, इस जीवन में, जगत में जो कुछ बना हुआ है ये भगवान ने बनाया है। आप बोलोगे किसने देखा है, जैसे कि हम देख सकते हैं, हम देख नहीं सकते क्योंकि जब दुनिया बनी तब हम नहीं थे, सिंपल बात। इसलिए भगवान ने दुनिया कैसे बनी, दुनिया कौन बनाया, दुनिया क्यों बनाया, हम कौन हैं, दुनिया क्या है, दुनिया क्यों बनी, ये सब कुछ ज्ञान जब दुनिया बनी उसके साथ दिया। कैसे दिया? वेद के माध्यम से दिया। वेद किसको दिए ज्ञान? वेद का ज्ञान पहली बार ब्रह्मदेव को दिया। ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में पहला जीव जो भगवान बनाते हैं वो ब्रह्मदेव है। भगवान विष्णु के नाभि से जो कमल निकलता है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। आपने फोटो देखा होगा, पेंटिंग देखी होगी
कि भगवान विष्णु के नाभि से कमल दिखाते हैं, कमल के ऊपर ब्रह्मा को दिखाते हैं, तो ब्रह्मा जी पहले जीव है इस ब्रह्मांड के। ध्यान दीजिए, शब्दों पे भी ध्यान दीजिए। ब्रह्मांड है तो पहला जीव ब्रह्मदेव है, और जो ज्ञान दिया गया ब्रह्मा जी को कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका कार्य क्या है, आपका ड्यूटी क्या है, आपको क्या करना है, मैं कौन हूँ, भगवान बताते हैं। तो वेदों का ज्ञान दिया, तो वेद को बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। क्या बोलते हैं? ब्रह्म ज्ञान। और जो नवोदय विद्यालय समिति का जो लोगो है, लोगो में जो नीचे लिखा है प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, सभी ज्ञान में सबसे महान ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, प्रज्ञानम ब्रह्म। ज्ञान अनेक होते हैं, भौतिक ज्ञान, रासायनिक ज्ञान है ना, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, बहुत कुछ है, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। ये होता है ब्रह्म ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। तो सभी ज्ञान में वो सबसे महान है। तो वेद जो है ब्रह्म ज्ञान है, और वही ब्रह्म ज्ञान, वेदों का ज्ञान माता सरस्वती के हाथ में होता है। माता शारदा, देवी शारदा के हाथ में जो बुक्स होते हैं वो वेद है, और इन सभी वेदों का जो इसेंस है, सार, वो भगवत गीता है। आज हम सभी वेद पढ़ नहीं सकते, वेद की भाषा बहुत कठिन होती है, आज तो संस्कृत कोई जानता भी नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए भगवान ने कलयुग शुरू होने से पहले महाभारत के युद्ध में अपने भक्त सखा अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवत गीता का ज्ञान दिए थे, ताकि हम अपने जीवन के विषय में, इस जगत के विषय में, अपने ड्यूटी के विषय में जान सके। क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान जो है, भगवान का ज्ञान जो है, दुनिया का ज्ञान जो है, आत्मज्ञान जो है, अपने ह्यूमन रिसर्च से समझना असंभव है, क्योंकि आंखों से दिखता नहीं है, आंखों से दिखता नहीं है, मन से कल्पना नहीं होती है, ये अचिंत्य है। अनुभव हो सकता है, अनुभव आता है, लेकिन भौतिक आंखों से नहीं, दिव्य चेतना से अनुभव आता है। आत्मा की शुद्ध चेतना, आत्मा की दिव्य चेतना से अनुभव आ सकता है कि भगवान कौन है, हम कौन हैं, हम दुनिया में क्यों आए हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है। ये जो बेसिक प्रश्न हैं, जीवन के मूलभूत प्रश्न हैं, इनका हम जवाब पा सकते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा ही समय है, लेकिन जो कुछ आवश्यक बात है वो बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमें अपने जीवन का समाधान, हमें अपने जीवन का संपूर्ण सुख, ये स्कूल कॉलेज का जो हमें पोजीशन मिला, मार्क्स मिला, या हम बड़े कॉलेज में बीटेक किए, उससे नहीं मिला है। हमें अपने जीवन का सुख, या किसी को भी मिलता नहीं है, अपने जीवन का समाधान, अपने जीवन का संपूर्ण सुख हमें भगवत गीता का ज्ञान पढ़ने से मिला है। मैं अकेला नहीं हूँ, दुनिया में ऐसे हजारों सालों से, लाखों सालों से ये ब्रह्म ज्ञान होने से असंख्य लोगों ने अपने जीवन को सफल, धन्य बनाया है। हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना है एक जॉब के लिए, एक प्रोफेशन के लिए, लेकिन केवल एक जॉब से, प्रोफेशन से अपना जीवन सुखी नहीं बनता है। जब तक हमें अपने जीवन का ज्ञान नहीं होगा कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, कितना समय के लिए है, हमें कहाँ जाना है, ये भी तो एक आवश्यक ज्ञान की बात है, समझने की बात है। क्योंकि हम हमेशा के लिए दुनिया में नहीं हैं। बच्चों, आप लोग स्कूल में हो, आप लोग हमेशा के लिए स्कूल में रहेंगे? विल यू बी देयर इन स्कूल फॉर ऑल टाइम? You will be there in school only for maximum 7 years, 7 साल। लेकिन दुनिया में कितना समय है वो तो कोई जानता नहीं है, जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है। लाइफ इज़ वेरी अनसर्टन, बट ह्यूमन लाइफ इज़ द मोस्ट प्रेशियस। मनुष्य जीवन जो है सबसे अनमोल है। क्यों?
जो बाकी जीवन में ना, पशु जीवन, पंछी जीवन, जो बाकी जीव है, कीड़ा है ना, कीटक है, पानी के जीव है, हवा के जीव है, पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, ये जीवन में जो हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, आत्म ज्ञान नहीं हो सकता, वो हमें मनुष्य जीवन में बहुत आसानी से हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है यदि हम लेना चाहे तो मैंने सुना कि आपके स्कूल में बहुत बच्चों ने वैल्यूज़ कॉन्टेस्ट, वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट के लिए भाग लिया है। तो आपके लिए आपको भगवद गीता मिली है, एक छोटी बुकलेट मिली हुई है जिसमें बहुत अच्छे टॉपिक्स दिए हैं कि जीवन के विषय में, अपने दुनिया के विषय में, भगवान के विषय में कुछ अच्छे टॉपिक्स लेकर वो एक कॉन्टेस्ट का आयोजन किया है। कितने बच्चों ने भाग लिया है उसमें? How many of you have registered for value education contest based on Bhagavad Gita? वेरी गुड, वेरी गुड। सो हाथ नीचे कीजिए, ठीक है? कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। लास्ट 5 मिनट्स, ओके, लास्ट 5 मिनट्स। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को सफल बनाने का एक अपना सुवर्ण अवसर है, गोल्डन चांस है। समय निकल जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन यदि हमने जीवन का ज्ञान नहीं पाया होगा, जीवन का समाधान नहीं पाया होगा, तो हमें दुख होगा अंत में। ओ, हमें मौका मिला था लेकिन हमने उसका सदुपयोग नहीं किया। बच्चों, हमें नवोदय विद्यालय छोड़कर 25 साल हो गए। कितने साल हो गए? 25 साल हो गए। तो समय जाने में समय नहीं लगता, टाइम विल पास वेरी फास्ट। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप जो अभी स्कूल में हैं, विद्यालय में हैं, अपना सौभाग्य है। क्या है? सौभाग्य है। अपने समय का सदुपयोग कीजिए। यहाँ जो शिक्षक है विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, ऐसे शिक्षक आपको कभी नहीं मिलेंगे बाहर, हमें भी नहीं मिले, ना पहले मिले नवोदय विद्यालय के पहले, ना नवोदय विद्यालय के बाद मिले। जो 5 साल हमने नवोदय विद्यालय में बिताए, हमें इन शिक्षकों से इतना प्रेम मिला, इतना ज्ञान मिला, इतना ध्यान और इतना समय मिला, तो हमें अपना जीवन ना धन्य लगता है कि ये शिक्षक केवल किताबों की पढ़ाई नहीं, साथ ही साथ जीवन के लिए भी जो आवश्यक ज्ञान है देते रहते हैं। बाहर के बच्चों के लिए सुबह जल्दी जल्दी उठना सपना ही होता है, सपना ही होता है। ऐसा सपना भी नहीं होता है, वो सपना भी देखते नहीं है सुबह जल्दी उठने का। स्कूल 10 बजे होगी, 9 बजे उठते बच्चे, हमने देखा है समाज में। और टीवी मोबाइल के सिवा उनको कुछ पता नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर हमें बहुत अच्छी सुविधा है कि हम सभी साथ में हैं, तो सुबह 5 बजे उठ पाते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज सुबह का दौड़ लगा पाते हैं। आप लोग उठे थे सुबह? यस, मैं सुबह सुना सिटी बस्ती है, फिर ना सब जमा होते हैं, दौड़ लगाते हैं, अपने दिन की शुरुआत अच्छी होती है। मैं यह हमेशा देखता हूँ, खुद अनुभव किया हूँ कि टीचर्स ध्यान देते हैं, हमने नाश्ता खाया नहीं खाया, हम स्कूल में आए नहीं आए, तबीयत ठीक है नहीं है, अपना स्वास्थ्य अच्छा है नहीं है, हम पीटी में खेल में गए नहीं गए, हम कॉम्पिटिशन में भाग लिए नहीं लिए। टीचर्स ध्यान देते हैं। आज समाज में माता पिता को भी बच्चों के लिए समय नहीं है, ऐसा समाज बन गया है। माता पिता अपने बिजी है कमाने में, जॉब में, व्यवसाय में, बच्चों के लिए ध्यान नहीं है, समय नहीं है। लेकिन यहाँ पे नवोदय विद्यालय में अपना सौभाग्य है कि हमें ये शिक्षक 24 घंटे ध्यान देते हैं, समय देते हैं, अपना ख्याल करते हैं। तो हमें इन शिक्षकों को माता पिता के समान सम्मान देना चाहिए, सही में, क्योंकि अपने लिए माता पिता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये शिक्षक है, जिनके आश्रय में हमें कुछ अच्छा ज्ञान और अपना जीवन अच्छा महान बन सकता है। तो ये भी बोलते हैं हम कि हमें जो सुविधा मिली है नवोदय विद्यालय में, उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कृतज्ञ होना चाहिए। वी मस्ट बी ग्रेटफुल, वी मस्ट बी ग्रेटफुल टू व्हाट वी गेट इन आवर नवोदय स्कूल।
देन योर इंटेलिजेंस विल फंक्शन। ध्यान दीजिए, लास्ट वॉइस, those who do not feel grateful, those who do not feel grateful, they become grateful। ध्यान दिया आपने, क्या बोला मैंने? those who do not feel grateful, they become grateful। वो दुखी होते हैं, हमेशा दुखी होते हैं। वो ये नहीं मिला, नाश्ते में कम पड़ गया, हमें 2 फल कम मिल गए, या ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हमें भूल जाते हैं कि हमें जो कुछ मिला है वो भी कम नहीं है। थोड़ा बहुत कमी, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सब जगह होती है, लेकिन हमें जो कुछ मिल रहा है वो बहुत है। ये समझने से आपका मन शांत होगा, मन में आनंद होगा कि हम सौभाग्यशाली हैं, हमें बहुत अच्छी सुविधा मिली है, तो उसका उपयोग आपसे हो पाएगा। अंतिम बात मैं यही कहूँगा कि इन शिक्षकों को अच्छा अपना सम्मान दीजिए, इनका जो आज्ञा का पालन कीजिए, आपको पूरा लाभ होगा। हमें अपने शिक्षक 25 साल के बाद भी बुलाते हैं, याद करते हैं। क्यों? हमने उनको चाहते भी है और उनका हमेशा सम्मान किया है। और पढ़ाई के लिए बोलता हूँ मैं 2 चीज़, अपना मन शांत चाहिए और बुद्धि तेज चाहिए। ये जो मोटिवेशन है, कम टू लर्न, गो टू सर्व, कि हमें ज्ञान लेना है। ज्ञान तो केवल किताबों का नहीं है, किताब भी लेंगे, किताब का भी, लेकिन केवल किताबों का नहीं है। यहाँ पे नवोदय विद्यालय में आर्ट्स के लिए भी अच्छा प्रोत्साहन देते हैं। आर्ट्स, कला, संगीत, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, हेल्थ वाइज, ऐसा बहुत कुछ है। हमें अच्छा प्रोत्साहन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, प्रेरणा देते हैं, तो वहाँ आपका मन लगेगा, आपको आनंद आएगा। केवल पोजीशन, मार्क्स, ट्रॉफी में आनंद नहीं है। और मिले तो ठीक है, नहीं भी मिले तो भी आपको जो आनंद मिलेगा किसमें? लर्निंग प्रोसेस, सीखने में, भाग लेने में। टेक पार्ट इन ऑल कॉम्पिटिशन्स, अपना ताकत लगाइए, अपना ना प्रयास कीजिए। एंड लास्ट थिंग, व्हाई दिस नॉलेज वी हैव टू टेक, रिसीव, इम्बाइब, नॉट जस्ट अर्निंग मनी। केवल पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो छोटा उद्देश्य है। केवल पैसे कमाने से कोई बड़ा नहीं बनता है। जो लोग कुछ सेवा देने का विचार रखते हैं, लेट मी डिवोट माई टाइम, माई लाइफ फॉर सम कंट्रीब्यूशन फॉर सोसाइटीज़ वेलफेयर, समाज के कुछ सुख के लिए, समाज के कुछ फायदे के लिए, समाज की सेवा के लिए कुछ अपना समय, अपना ज्ञान देंगे, सेवा, तो ये आपको बड़ा समाधान देगा, विल एम्पावर यू, और भगवान का आपको कृपा मिलेगा। हम जो बोलते हैं सबका मालिक, क्या बोलते हैं? सबका मालिक एक बोलते हैं। तो हम कौन है? मालिक तो एक ही है, भगवान। बहुत खांसी होती है बच्चों को, थोड़ा 2 मिनट बस। हम सेवक है, सबका मालिक हम तो मालिक नहीं बन सकते, मालिक तो भगवान ही है। तो हम कौन होते हैं? सेवक। तो जैसे हनुमान जी जो है, जैसे हनुमान जी हमेशा भगवान की सेवा में तत्पर होते हैं, तैयार होते हैं कि भगवान की सेवा की जाए। भगवान की कोई आज्ञा होगी तो हम सेवा करेंगे। इसलिए हनुमान जी को इतना शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, सभी सिद्धियाँ मिली हुई है। क्यों? भगवान की सेवा की इच्छा है। वैसे ही और रोज हनुमान जी सबके लिए, देवताओं के लिए पूजनीय है। क्यों? भगवान के महान सेवक है। वैसे ही सौभाग्य हमें भी उपलब्ध है। हम भी यदि चाहें तो हनुमान जी जैसा इतना बड़ा नहीं, लेकिन छोटा भी चलेगा, लेकिन भाव, सेवा का भाव बना सकते हैं, अपना सकते हैं और अपने जीवन को महान बना सकते हैं। आज के दिन मैं एक दिन आपके कैंपस में हूँ, किसी को कुछ पूछना होगा, कुछ मिलना होगा मुझसे, तो मैं आपकी क्लास में आऊँगा 5-10 मिनट के लिए, क्लास वाइज मैं इंटरेक्शन के लिए आऊँगा 5-10 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। तो तब मुझसे मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल, मे गॉड ब्लेस यू।
श्री जगन्नाथ दास, एक स्टूडेंट नवोदया, आपका भैया, योर ब्रदर, जो बातें बताए हैं उसका थोड़ा सा अवसर कीजिए। जिंदगी में हम बहुत सारा ज्ञान पाते हैं, बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन जीने का जो तरीका है, वैल्यूज यानी गुण, अच्छे गुणों को अपनाना, अच्छा समाज को बनाना। भक्ति से शांति मिलती है, भक्ति से शांति मिलती है, भक्ति को दिखाना, भक्ति को अपनाना। जय हिंद, जय भारत माता।